Now the next topic which we are going to discuss is central bank. Central bank, as we know, in all over the world is known as the apex bank or the main bank of the country, which is responsible for making the policies, okay, reviewing the policies and creating an environment for growth and expansion of economy in any country. Okay, it's the central bank, like Federal Bank in US is there, okay, then Reserve Bank of India is there in India, and then Bank of England is there in Britain. So there are many central banks all over the world, and they are responsible for for supervising the activities of all the commercial banks which are working in an ecosystem of that particular financial ecosystem of that particular country. It is the central bank who is regulating the policies, who is formulating the policies, regularly checking how the implementation of those policies is happening in various financial institutions or commercial banks, and reviewing those policies whether they are for the providing use to the economic activities, and whether they are not affecting negatively to the economic activities. If they are making an harm on the economic activities, they review it, they change it, and they adjust it according to the requirement of the economy of that particular country. So central bank plays a major important role in any economy in regulating the economic activities of that country. That's why it is also known as bankers bank, who is working as an apex institute over all the commercial banks and financial institutions. Now, what are basic major functions of this central bank? First one is that it is responsible for issue of currency. So whatever the currency which is available in the market, okay, like your all the currency notes, it is the job of the central bank to regulate the flow of currency into the system. Okay, right now Reserve Bank has reduced repo rate and reverse repo rate, which has relaxed the limits onto the commercial banks to expand their lending facilities, which will ultimately lead to flow of money or supply of money into the system. Okay, so earlier they created a system of 3,75,000 crore, now they have created a system of 1,25,000 crore more. So in this way, Reserve Bank of India is responsible. Currency doesn't mean that cash is available in the market, but it is that how much money is available into the banking system, which they can lend to the people, and people can use them for the economic activities. So it is responsible for issue of currency, both the volume of currency as well as the credit, means both the cash available into the market as well as the credit available, and it is responsible for the maintaining control over the total currency which is available into the market. Okay, then another important aspect is it is acting as a banker to the government. It plays an important role in guiding the government in making the policies. The finance ministry depends upon Reserve Bank of India in certain areas. So it performs various functions for the government. It acts as a banker for the government, it acts as an agent for the government, and it acts as the advisor for the government. So as a banker, it manages accounts of the bank, of the government. Okay, तो सरकार के जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम है उसको वो कौन मेंटेन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब it is making account of all the receipts and payments which are done on behalf of कि कितना टैक्स आया, कितनी इंटरेस्ट पे की, कितना लोन रेज किया, कितना लोन पे किया, किस गवर्नमेंट को पे किया या किस कंट्री को पे किया या स्टेट गवर्नमेंट को पे किया. तो ऑल दैट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का पूरा हिसाब
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ओके, और ये शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड समटाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इंटरिम डिविडेंड ले लिया सरकार ने, या 1,45,000 करोड़ का सरकार ने एक बेनिफिट दिया था कंपनीज को, तो वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो कहाँ से डिराइव किए गवर्नमेंट ने? सेंट्रल बैंक से डिराइव किए, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में थे, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से डिराइव करती है? सेंट्रल बैंक से। देन सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैनेजिंग द पब्लिक डेब्ट। सो डेफिशिट फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं कि कितना पब्लिक डेब्ट आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये सारी स्टेट्स का एक डेब्ट परसेंटेज मेजर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, so as to keep a control on the fiscal deficit or the fiscal discipline. Okay, another important thing is it's acting as an agent for buying the treasury bills and buying and selling the treasury bills for the government, so that it can expand the money or it can squeeze the money. So that is the another important function. Then third important function towards the government is it acts as an advisor. Okay, so it provides advice to the central government in various economic activities, i.e. deficit financing. How much deficit financing can be done by the government, keeping in accordance with the ups and downs of economy, how much expansion they can do, how much government spending can be carried on further to make changes in the economic activities. Okay, so it also helps us in understanding how much appreciation or devaluation of rupee can be done. Okay, what can be the trade policy of the country? Like China is nowadays trying to take away number of shares of various companies. So in this case also they are helping them to understand where what is happening, so that government can formulate its trade policy. Okay, and also foreign exchange policy, what can be the foreign exchange policy of the government, so that is decided with the help of Reserve Bank of India. Now coming over to the another function of the central bank, that is it is a bankers bank. तो बैंकर्स बैंक इसलिए कहते हैं कि ये वही काम करता है जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ करता है, कि कस्टमर को वो कहता है कि आपने अच्छा आपने अकाउंट खोलना है तो आप कुछ डिपॉजिट कराओ, उस डिपॉजिट के बेसिस पे वो लोन देता है। तो सेम वे कमर्शियल बैंक को अगर बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करना है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो पहले कुछ लाइसेंस फीस देगा और कुछ अपने डिपॉजिट्स रखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, देन ओनली दे कैन कैरी आउट दी बैंकिंग एक्टिविटी। और वो जो रिजर्व रखना है वो किस बेसिस पे रखा जाएगा? CRR के बेसिस पे और SLR के बेसिस पे रखा जाएगा। और ये इसलिए रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, सो दैट अगर इन फ्यूचर कोई इनको प्रॉब्लम्स आ जाएं बैंक की फंक्शनिंग में, so they can easily get loans from the Reserve Bank of India for proper functioning. That is why they are keeping deposits with the Reserve Bank of India. Then Reserve Bank of India acts as a supervisor. कि किस सुपरवाइज़र है तो ये डिसाइड करेगा किसको लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना है बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी चलाने के लिए। क्या वो जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने फिक्स डिसाइड किए हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये तो पहला पार्ट हो गया कि लाइसेंसिंग देने का। दूसरा है ब्रांच एक्सपेंशन करने का, कि बैंक वांट्स टू ऐड ऑन मोर एंड मोर ब्रांचेस, so on what basis he can that bank can add more and more branches, that is also being decided by Reserve Bank of India. Another thing is nowadays when consolidation of banks is happening, so he is making policies, rules and regulation for combination or consolidation of various banks all together, so that is being done by the Reserve Bank of India. And the Reserve Bank of India is doing that on regular basis. Okay,
after inspection of the banks, how they are functioning and what they help or what rules and regulation they need, that is what the Reserve Bank of India is doing. Okay. Another function Reserve Bank of India is doing is it is a lender of last resort. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए इमरजेंसी में अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए और वो अप्रोच करता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट वो है कि यू आर गेटिंग द मनी अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर ए शॉर्टर टाइम पीरियड ऑफ 1 to 14 days। ओके, और ये वर्क करती है इन वर्स टू CRR। ओके, तो कॉल मनी मार्केट में अगर पैसा ड्राई अप हो गया, मतलब किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा नहीं रह गया लेंड करने के लिए किसी बैंक को, तो ये वाला बैंक जिसको पैसा चाहिए वो रिजर्व बैंक को अप्रोच कर सकता है एंड वहाँ से पैसा लेकर वो अपना काम चला सकेगा। तो इसलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। फिर इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम मतलब ये क्या है कि अगर एक बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक आंध्रा बैंक का चेक आया और एक पंजाब नेशनल बैंक का चेक आया, अगर तो सेम ब्रांच का होता है, जैसे SBI का SBI में ट्रांसफ़र होना है तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, उसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं क्योंकि एक ही बैंक के अंदर अकाउंट्स पड़े हैं, उनको डेबिट क्रेडिट करना है, दैट्स इट, डन। ओके, बट अगर डिफरेंट बैंक्स के चेक एक बैंक में आते हैं तो वो सारे चेक पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने अकाउंट्स में जो उसने डिफरेंट बैंक्स के लिए मेंटेन किया, तो वो डिफरेंट बैंक्स जिस बैंक से चेक आया था उनमें से वो डेबिट कर लेगा और अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेगा, मतलब रिजर्व बैंक के अकाउंट में उस सारे पैसे को क्रेडिट कर लेगा। फिर वो रिजर्व बैंक के अकाउंट में से डेबिट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा एंड देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल मेक पेमेंट टू द कंसर्न्ड पार्टीज। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ओके, एंड लास्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है कंट्री में डिफरेंट बैंक्स के पास, रिजर्व बैंक के पास, सबको अपना अकाउंट देना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि उनके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है, so that in any emergency it can call up all that money for paying the foreign debts and various other things. That is what the basic functions of central bank. Okay, clear? Now we are going to discuss central bank as controller of money supply. We have already understood that it is the duty of the central bank, means RBI, to issue currency notes. Okay, so it is regulating the issue of currency notes into the market. Okay, as to how many currency notes will be there. Okay, the total amount of currency notes, how many lakhs of notes pieces will be in the market. And the another important role is that it is regulating the credit creation. Okay, and that credit creation is being controlled through demand deposits. Okay, so demand deposits are being received by commercial banks and these commercial banks are further lending money to the customer and thus expanding the credit creation in the market or money supply in the market. And this money supply is being controlled by whom? Controlled by central banks. Okay, the money creation of the commercial banks is being controlled by the central bank. Okay, and central bank is doing this activity in two different ways. One is qualitatively and another is quantitatively. Okay, now we are going to first of all discuss the quantitative techniques which the central bank is going to use for the purpose of controlling the demand, controlling the credit creation through demand deposits. Now,
क्रेडिट क्रिएशन में क्या है कि आपके पास जितना पैसा अवेलेबल होगा डिमांड डिपॉजिट में, आप उतना ही क्रेडिट क्रिएशन को एक्सपेंड मतलब लेंडिंग को एक्सपेंड कर सकते हो। जितना पैसा कम अवेलेबल होगा आपके पास, उतनी आप लेंडिंग को डिक्रीज कर सकते हो। ओके, तो इस लेंडिंग को एक्सपेंड करना या डिक्रीज करने का कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। आजकल जैसे सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये पेंडेमिक चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ने क्या किया है कि उसने अपने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ की हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक में उसने अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सारी चीज़ों के ऊपर, कैश रिजर्व रेशो, SLR, ओके, इन सारी चीज़ों के ऊपर उसने अपनी नई पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं, जिससे क्या हुआ है, मनी सप्लाई को एक्सपेंड किया गया। तो अब ये सारे टूल्स जो हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स, किस तरह से मनी सप्लाई को एक्सपेंड करते हैं या इसको स्क्वीज़ करते हैं या इसको श्रिंक करते हैं मार्केट में से, वो हम अब समझने वाले हैं कि ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी हैं। सबसे पहली क्वांटिटेटिव टेक्निक है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी में अगर आप बैंक रेट को डिक्रीज कर देते हो तो क्या होगा? बैंक रेट कम हो जाने से क्या आप पैसा डिपॉजिट कराओगे बैंक में? नहीं। ओके, तो आप क्या करोगे? पैसे को कंज्यूम करने की कोशिश करोगे। ओके, और बैंक रेट में, पॉलिसी में अगर बैंक रेट कम होता है तो मतलब सेविंग रेट कम होने के साथ साथ आपका लोन रेट भी कम होगा, और लोन रेट अगर कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने जाएंगे, तो बैंक्स के लिए मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, बैंक रेट कट होने से क्या क्या कट होता है? लोन एज वेल एज सेविंग रेट दोनों कट हो जाते हैं। और लोन और सेविंग रेट कट होने के बाद जब लोन सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए जाएंगे, और इससे बैंक को क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प मिलेगी। तो मतलब वो अपना मनी सप्लाई को क्या कर सकेगा? एक्सपेंड कर सकेगा। ओके, और सेकेंडली क्या है कि इसमें सिर्फ बैंक रेट जब कम होता है, मतलब बैंक रेट बेसिकली किससे इफेक्ट होता है? CRR से या रेपो रेट से इफेक्ट होता है। ओके जी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड CRR, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बैंक रेट को इफेक्ट करते हैं। आपने क्या किया? रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट का मतलब क्या है कि वो इंटरेस्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज कर रहा है पैसा फॉर द डिपॉजिट्स केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ वो चार्ज कर रहा है पैसा। अगर वो आपसे कमर्शियल बैंक से कम पैसा चार्ज करेगा तो मतलब उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकेंडली, अब जो पैसा चार्ज कर रहा है वो किसके ऊपर चार्ज कर रहा है? वो चार्ज कर रहा है CRR के ऊपर, कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश आउट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट, वो कहाँ रखना होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, बैंक्स को। ओके, कमर्शियल बैंक्स को। अब इस कैश रिजर्व के ऊपर रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर कैश रिजर्व को भी कम कर दो, रेपो रेट को भी कम कर दो, तो बैंक रेट भी कम हो जाएगा। बैंक रेट कम हो जाएगा मतलब बैंक को बहुत कम पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और बाकी पैसा उसका फ्री हो जाएगा, जिसको वो लेंड कर सकता है। तो ये बैंक रेट पॉलिसी के डिक्रीज होने का इम्पैक्ट है। और बैंक रेट पॉलिसी डिक्रीज तब होती है जब रेपो रेट भी कम हो और कैश रिजर्व रेशियो भी कम हो। ओके, और ये जनरली तब किया जाता है जैसे जब डिफ्लेशन आती है। जैसे आजकल हम जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जा चुके हैं इस पेंडेमिक के कारण, तो हम डिफ्लेशनरी ट्रेंड में जा चुके हैं।
तो यहाँ से निकलने का एक तरीका है कि मनी सप्लाई क्रिएट की जाए, सस्ता पैसा अवेलेबल करवाया जाए लोगों को, ताकि वो लोन ले सकें, इन्वेस्ट कर सकें बिजनेस में और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें। ओके। और दूसरी साइड पे जो कंज्यूमर है उसके पास भी लोन सस्ता अवेलेबल होगा तो वो उससे अपनी कंजम्पशन को बढ़ा सकेगा। फिर है इंक्रीज इन बैंक रेट। हम अब इसका उल्टा क्या है कि अगर हम बैंक रेट को इंक्रीज कर दें तो उस इंक्रीज से क्या इम्पैक्ट होगा। इंक्रीज इन बैंक रेट तब होता है जब आपने रेपो रेट भी बढ़ा दिया और कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा दी। मतलब ज़्यादा पैसा एक तो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ है और उसके ऊपर ब्याज रेट भी आपने बढ़ा दिया, तो आपको तो डबल नुकसान हो गया। डबल नुकसान होने से आपके बैंक के पास जो पैसा अवेलेबल था, फ्री अवेलेबल था, जिसको आप आगे लोगों को लेंड कर सक रहे थे, अब वो डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिंग मनी सप्लाई विल डिक्रीज। मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी और मनी सप्लाई तो एक डिक्रीज करेगी। दूसरा यहाँ से क्या होगा, जब वैसे ही रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को आप बढ़ाते हो तो जो सेविंग रेट है और लेंडिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अब जब लेंडिंग रेट बढ़ता है तो कम लोग लोन लेते हैं, तो इससे मनी सप्लाई मतलब क्रेडिट क्रिएशन करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कम लोग आपसे लोन पर पैसा ले रहे हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन भी डिक्रीज होता है या मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है इसमें। ओके। और फिर है ये हमेशा आपको इन्फ्लेशन के दौरान किया जाता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इम्पैक्ट कि बैंक रेट बढ़ा दो तो मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी, लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी। ओके। और क्या कहते हैं, बैंक्स को ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन करेंगे तो बैंक के पास कम पैसा अवेलेबल होगा, जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकेंगे। तो ये जब भी आप इंक्रीज करते हो बैंक रेट, कब होता है वो, जब मनी सप्लाई आपको डिक्रीज करनी होती है मार्केट में। ओके। अब आ जाओ रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है ऑन द डिपॉजिट्स विच आर केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपल्सरली। मतलब ये ज़बरदस्ती रखे हुए पैसे के, एक तो पैसा रखवाते हैं और उसके ऊपर ब्याज भी मांगते हैं उससे, कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या है कि कई बार मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एल्योर करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप मेरे पास अपना डिपॉजिट रख जाओ और मैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट दूंगा। और अगर कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा करते चले जाएं तो कमर्शियल बैंक को तो फ़ायदा है कि ठीक है मेरा पैसा पड़ा है सेफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और इस पर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा ज़्यादा, तो वाई शुड आई गो फॉर क्रेडिट क्रिएशन। तो इस तरह से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा डिपॉजिट करवा देता है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो कमर्शियल बैंक जिस रेपो रेट में इंटरेस्ट लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके। अब आ जाओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऐसी हैं कि जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज़ को या तो खरीदता है या बेचता है। अब जब उसको मनी सप्लाई एक्सपेंड करनी है तो वो क्या कर रहा है, ओपन मार्केट में से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा। खरीदने के वक्त वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को एक्सपेंड करेगा बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स and those new notes are being provided to the central government which will be used for various flagship programs। okay। तो सरकारी खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा आ गया और वो फर्दर यूज़ कर सकेंगे। मगर अगर उसको क्या कहते हैं अपनी मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा,
जो सिक्योरिटीज सरकार की उसने खरीद रखी हैं उसे मार्केट में बेच देगा, जिसे सरकार खरीद लेती है या बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद लेते हैं और उनकी पॉकेट से पैसा निकल के रिजर्व बैंक के अकाउंट में चले जाता है। तो इस तरीके से परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ के टाइम आपकी जो मनी सप्लाई है उसे एक्सपेंड किया जाता है और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ के टाइम मनी सप्लाई को श्रिंक किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। फिर हमने CRR डिस्कस कर लिया था। CRR है कि वो मिनिमम कैश अमाउंट जो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी है। अब इस मिनिमम कैश अमाउंट के इंक्रीज और डिक्रीज से मनी सप्लाई एक्सपेंड करती है या श्रिंक करती है। अगर CRR आपका कम है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल ज़्यादा हैं, और अगर आपकी CRR डिक्रीज इंक्रीज कर दी गई है तो आपके पास टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मनी सप्लाई है डिक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज करने पे CRR पे मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाती है और डिक्रीज करने पर CRR के मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। एंड लास्ट एस्पेक्ट इज SLR। SLR को कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक कंपलसरी है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन पे एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी है। मतलब ये पैसा लैंडिंग के लिए नहीं अवेलेबल है, ये बैंक के सर्वाइवल और फ्यूचर के लिए अवेलेबल है। तो ये बैंक में ही पड़ा रहेगा, रिजर्व बैंक के अकाउंट में चला जाएगा और ये पैसा अवेलेबल नहीं होगा आपकी फर्दर क्रेडिट क्रिएशन के लिए। सो अगर SLR आपका इंक्रीज कर जाता है तो आपके पास कम पैसा अवेलेबल होगा, लिक्विड पैसा अवेलेबल होगा फॉर एक्सपेंशन पर्पस। ओके, तो मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर आपका SLR डिक्रीज कर जाता है तो आपके पास फंड्स जो अवेलेबल हैं वो ज़्यादा होंगे, मनी सप्लाई उससे क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ SLR। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है when SLR is low, ठीक है जी, इट इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड हायर SLR है तो मनी सप्लाई क्या होगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल with the quantitative tools of Reserve Bank of India. Now we are understanding the last topic of this chapter, that is qualitative tools of money control of central bank. Means सेंट्रल बैंक कौन से क्वालिटेटिव टूल्स यूज करेगा मनी कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में। ओके, तो सबसे पहला तो वो टूल यूज करता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब कंज्यूमर किस किस चीज़ के लिए क्रेडिट लेता है? कंज्यूमर क्रेडिट लेता है होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए। ओके, और क्या कहते हैं, और भी कोई लोन अगर चाहिए हो तो वो लोन लेता है कस्टमर जाके बैंक से, कमर्शियल बैंक से। अब इस को कंट्रोल करना किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक के हाथ में है। अब सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को, कंज्यूमर क्रेडिट को? मतलब कंज्यूमर को अगर डिसवेड करना है, उसको भगाना है दूर बैंक से कि नहीं, इसको लोन नहीं ले आके हमारे पास हर वक्त मत आए कस्टमर लोन लेने के लिए, तो क्या करो, EMI बढ़ा दो। ओके, EMI मतलब इंस्टॉलमेंट्स जो देनी है वो बढ़ा दो। एक तो उनका साइज बड़ा कर दो कि पहले तो आप 15,000 रुपये लेते थे महीना, अब उसको कहो नहीं, अब आप 20,000 रुपये महीना दो, और आप उसका टाइम पीरियड भी कम कर दो। पहले 25 साल था, अब उसे कहो नहीं 20 साल में कंप्लीट करो। तो जब आप 25 से 20 साल कर दोगे और EMI का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ा दोगे, या डाउन पेमेंट मतलब इनिशियल जब उसने कोई चीज़ आपसे लोन लेनी है, मान लो 75 लाख का लोन लेना है, तो
उसको कह दिया नहीं आज आप 15 लाख रुपए, पहले तो आप 5 लाख से गुजारा कर रहे थे कि 5 लाख डाउन पेमेंट दे दो बाकी 70 लाख का आपको लोन दे देते हैं, उसकी आप इंस्टॉलमेंट्स बांध लो 20 साल की या 25 साल की। अभी क्या किया हमने, उसको डाउन पेमेंट कही कि नहीं आप 15 लाख की डाउन पेमेंट करोगे, 60 लाख आपको लोन मिलेगा और इस लोन को आपको 20 साल में या 18 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा और इसकी इंस्टॉलमेंट भी आपने साइज बढ़ा दिया, उसकी टोटल अमाउंट पर मंथ बढ़ा दी। तो इससे क्या है, कस्टमर घबरा कर भाग जाएगा और वो लोन नहीं लेगा। ओके, तो इस तरह से मनी क्रिएशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओगे। बट अगर आपको डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको कस्टमर के बीच में डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी कंजम्पशन हैबिट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे कि डाउन पेमेंट कम कर दोगे। आप कहोगे ठीक है आप 1 लाख बिना डाउन पेमेंट के रेफ्रिजरेटर ले जाओ, फ्रिज मोबाइल फ़ोन ले जाओ, और आप ईएमआई भी उसको कहोगे ठीक है आप 25 साल में दे दो, नहीं 30 साल में दे दो। तो उसमें क्या है कि आपने एक तो ईएमआई का साइज़ छोटा कर दिया। ओके, मतलब इंस्टॉलमेंट आपने एक्सपेंड कर दी कि आपको 20 की जगह 30 साल में इंस्टॉलमेंट पे कर देना और डाउन पेमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इससे क्या है कि मनी सप्लाई जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास लोन लेने आएंगे and that will help you in expanding the money supply in the market and that will lead to more credit creation. Okay, तो ये तो है, पहला है रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट। दूसरा एस्पेक्ट है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कितना परसेंट आप एक पर्टिकुलर बंदे को लोन दोगे। मान लो कि आपके पास एक एसेट है, उसकी अमाउंट है, एसेट इज ऑफ 5 लाख रुपीज। ओके, अब इस 5 लाख को दो तरह से मार्जिन देखते हैं। अगर तो आपने मार्जिन मेंटेन किया हुआ है 40%, ओके, तो आपके पास कितना पैसा अवेलेबल रह जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए तो आपने काट लिया, तो 3 लाख रुपी इज अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन। ओके, और अगर आपने उसका परसेंटेज कर दिया 20% मार्जिन का, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है आपके पास 20%। ओके, तो आपके पास 1 लाख काट के कितने में है, 4 लाख इज अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन। Okay, so that is how the margin money is margin requirement is affecting the money supply in the market। कि अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दोगे तो ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा आपके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए, और अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दोगे तो आपके पास कम पैसा अवेलेबल होगा क्रेडिट क्रिएशन को एक्सपेंड करने के लिए। ओके, फिर है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग में वी आर डिसाइडिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर्स which will get higher loans, okay, and other sectors who will get less loans। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, राशन कर रहे हैं कि किसको पहले देना है, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फंड्स की और जिसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो हम पहले पैसा उसको ज़्यादा लोन में देंगे। और जिस एरिया में हमें लग रहा है कि इनके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है एक्सपेंड करने की अपना लोन, हम उसको कम देंगे, मतलब जिसमें कम ग्रोथ के चांसेस हैं उसको कंपैरेटिवली थोड़ा
कम देंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि फंड्स हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल हैं और चाहिए कई सेक्टर्स को, तो ओनली दो सेक्टर्स विच आर हाईली एक्टिव विल बी गिवन funds, larger amount of funds at lower margin, and those sectors which will take time to grow and expand, they will be given more, they will be given less amount of money, मीन्स उनको क्रेडिट राशनिंग ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, उसको कम लोन मिलेगा, और जिनको चांसेस हैं कि जल्दी ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा देंगे, उसको लोन आप ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, तो ये क्रेडिट राशनिंग है। फिर आ जाते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज द रिक्वेस्ट बाय सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक्स, ओके, टू फॉलो monetary policy being framed by ओके। तो मॉरल सुएशन में क्या है, वो रिक्वेस्ट करता है, कंपल्सरी नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है उस मॉनेटरी पॉलिसी को जिस तरीके से बनाया वैसे ही इम्प्लीमेंट करो। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में अगर एक्सपेंशन के लिए, क्रेडिट के एक्सपेंशन के लिए पॉलिसी बनाई है, तो आपको वैसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि मनी सप्लाई मार्केट में एक्सपेंड कर सके। और अगर उसको मनी सप्लाई को श्रिंक करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, तो आपको वैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। ओके, ये तो था मॉरल सुएशन आपके पास। अब इसके बाद है आपके पास डायरेक्ट एक्शन। अब जब ना तो आप राशनिंग कर रहे हो, ना आप रिक्वेस्ट मान रहे हो, ना आप मार्जिन रिक्वायरमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वो डायरेक्ट एक्शन लेता है बैंक्स के अगेंस्ट। ओके, तो वो इंटरवीन करता है डायरेक्टली एंड टेक्स चार्ज ऑफ एवरीथिंग एंड गिव्स द ऑर्डर्स टू डू फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या फॉलोइंग थिंग्स करने को कहता है? पहले कि इट रिफ्यूजेस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, मतलब आपके पास बिल है, नेगोशिएबल बिल दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला है कहीं से, तो आप बैंक के पास चले गए कि आप मेरे पास मेरा ये बिल अपने पास रख लो और मेरे को पैसे एडवांस में दे दो। ओके, तो उससे क्या है कि अगर इस तरीके से करें तो मनी क्रिएशन होता है। बट अब यहाँ पे क्या किया, सेंट्रल बैंक ने सीधा कह दिया कि नहीं, किसी का कोई बिल डिस्काउंट नहीं करेंगे, किसी को एडवांस में पैसा नहीं देंगे, जब उसका टाइम ड्यू होगा तभी उसको पैसा मिलेगा। तो ये सबसे पहला उसने स्टेप लिया। दूसरा क्या है कि लोन ही रिफ्यूज़ कर दिया, कि कह दिया कि ये छोटे छोटे लोन नहीं देंगे, सिर्फ एक बड़ा लोन देंगे, या बड़े लोन नहीं देंगे, छोटे छोटे लोन देंगे कुछ अमाउंट के। तो वो मना कर सकता है, किसी को भी लोन रिफ्यूज़ कर सकता है। ओके, तो ये एक अनदर स्टेप ले रहे हैं। फिर है कि बैंक क्या करते हैं, पेनल्टीज चार्ज कर रहे हैं। जैसे एटीएम में आपने 4 से ज़्यादा बारी विड्रॉल कर लिया तो पेनल्टी चार्ज कर ली, चेक बुक में चेक ज़्यादा 2 से ज़्यादा बारी काट लिया तो पेनल्टी चार्ज कर लेंगे। ओके, चेक बुक नहीं मांगी तो उसके लिए पैसा चार्ज कर लेंगे, एटीएम कार्ड नया मांगा तो पैसा चार्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से बैंक्स हमारे से चार्ज कर रहे हैं खर्चा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से खर्चा चार्ज करता है। जब कमर्शियल बैंक जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं सेंट्रल बैंक ने उनको नहीं फॉलो करता, तो ये इस तरीके से उस पर चार्जेस लगा सकता है और उससे पैसा स्क्वीज कर लेता है। एंड देन देयर इज लास्ट डिसअलाउइंग बैंकिंग एक्टिविटी, मतलब बैंक ने कहना नहीं माना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया कि नहीं,
आप बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करोगे, आप शांति से बैठो, क्योंकि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, जिससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ओके, तो उस बैंक को बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने की जो परमिशन मिली हुई थी, उस एक्टिविटीज़ को आप डिसअलाउ कर देते हो टू कंट्रोल द सिचुएशन, एंड दैट इज़ हाउ that is what type of direct action a central bank can take to control the money supply in the market. Okay, so ये था हमारे पास चैप्टर बैंकिंग का।